Hey, good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, fit and fine, and staying safe at your home. Children, we have completed, I think, almost 2 to 3 months, okay, and we have completed the 6 chapters, as you know. We have discussed lot of things, and I hope you have thoroughly revised all the chapters of science. And you have performed well in your test also. Some students need improvement, ठीक है, काफ़ी बच्चों को improvement चाहिए, and most of them have done well in your test. Revision test we have done, okay. We have done the activities, we have done the projects, we have done the worksheets, and lots of things we have done, we have completed, okay. I have discussed the keywords also of all the chapters. So I hope you all have done well, okay. You all have revised the chapter thoroughly, okay, children. And you know, the CBSE has said to reduce the 30% of the syllabus for this academic calendar year, ठीक है ना. आपको पता है कि CBSE ने 30% सिलेबस कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, ओके. सो आई हैव टू रिड्यूस टू आई थिंक 4 चैप्टर्स, ओके. एज देर आर 16 चैप्टर्स, सो आई विल रिड्यूस 4 चैप्टर्स ऑफ इट. डेफिनेटली वो एग्ज़ाम्स में चैप्टर्स नहीं आएंगे, बट सो आई डेफिनेटली रिड्यूस 4 चैप्टर्स बच्चों, ठीक है. मैं 4 चैप्टर्स जो है इसमें से रिड्यूस करूँगा, और डेफिनेटली पढ़ाऊँगा ज़रूर. वो सारे चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल डू. बट दैट चैप्टर्स विल नॉट कम इन योर एग्जाम्स. मीन्स यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, फाइनल एग्जाम्स होंगे, उसमें वो चैप्टर्स नहीं आएंगे, बट वी विल डिस्कस इट. हम उसको पढ़ेंगे भी, ओके, एंड विल रिवाइज इट, विल डू ईच एंड एवरीथिंग. So here today I am starting the fresh chapter, okay bachcho. So it's a very interesting chapter, as you know, it is the chapter number 7, and the name of it is what? Getting to know plants. Yes bachcho, important chapter है getting to know plants. बच्चों all around आप जिधर भी देखो, what you'll see, huh? What you'll find? You'll find the greenery, you'll find the trees, है ना. The plants are what? All around us. The plants are all around us बच्चों. और आपको पता है बच्चों, there are so many of them in different shapes, different sizes, isn't it? And you know, मैंने आपको बताया भी था बच्चों that what? Plants are the primary producers on earth. Yes, plants are what? Plants are the primary producers on the earth. So what I told you बच्चों, that plant provide you the foods, है ना. हम डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में, ठीक है. दैट वी गेट द फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल, है ना. प्लांट सोर्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स, ओके. आई हैव टोल्ड यू दैट दे मेक फूड, ओके, एंड ऑक्सीजन फॉर अस. यू नो ना, द प्लांट प्रोड्यूसेस व्हाट? गिव्स व्हाट? फूड, ओके, एंड दे आल्सो प्रोवाइड अस द ऑक्सीजन. एंड यू नो, बोथ ऑफ विच आर वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल. हमारे जीने के लिए, हमें सर्वाइव करने के लिए इस अर्थ पे फूड एंड ऑक्सीजन प्राइमरी है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड व्हाट? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ. And what process, children, they use for making the food, you know? Yes, photosynthesis. Good. Okay. So the photosynthesis is the process by which the plant produces their own food with the help of what? The raw materials needed is what? Carbon dioxide, okay, and what? Sunlight, okay, then water, and the chlorophyll which is present in the green leaf itself. So these all are the things, okay. And you know children, the human beings and animals both depend upon plants for what? For food and oxygen. So it's a very important chapter bachcho, and you know, in this chapter we will learn about the main parts of the plants. Yes, what we are going to learn in this chapter, children, we are going to learn the main parts of the plant, okay, and we are going to learn the structure and functions of these parts. जो भी हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है. डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है. दीज ऑल आर अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस, है ना. तो बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. एंड यू नो दैट प्लांट्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम. यस, ते हमारा जो इकोसिस्टम है इसका मेजर कॉम्पोनेंट्स होता है. आप बाहर जाइए, गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू. आप बाहर जाओ, ठीक है, बालकनी में जाओ,
ठीक है। इट्स बेटर कि आप इस चैप्टर को थोड़ा सा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो अपने टेरेस बालकनी में, टेरेस गार्डन में, या बाहर अगर आपका जो है छोटा सा गार्डन है आपके घर, तो वहाँ पे अगर जाके इस चैप्टर्स को पढ़ोगे तो बहुत अच्छा फील आएगा, है ना। चीज़ों को आप समझ भी सकोगे। तो इफ़ पॉसिबल, ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है, बाहर अच्छा मौसम है और छोटा सा गार्डन है आपके घर के पास, ठीक है, आप बाहर आपके या टेरेस पे आपने गमलों में कुछ लगा रखा है, ठीक, तो वहाँ जा कर के इस चैप्टर को पढ़ोगे, समझोगे, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ साथ में आपके, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों ऐसा था कि मैं चाहता था कि इसको क्लास में पढ़ाऊँ, ठीक है, आप मेरे सामने हो, मैं डेमोस्ट्रेट करके पढ़ाऊँ, गार्डन में ले जाके पढ़ाऊँ, और डेफिनेटली अगर ऐसा मौका मिलेगा तो विल गो थ्रू दिस अगेन टू दिस चैप्टर, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आगे चल करके बच्चों आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके आसपास कुछ ग्रीनरी है, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो आप उनके पास जाकर के चैप्टर को पढ़ें, समझें, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सो क्या होता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो व्हाट विल सी, यू विल सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग, है ना, जबकि कुछ क्या है, कुछ बहुत छोटे होते हैं, कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, कुछ ग्रीन पैचेस आपको सॉइल पे देखने को मिलेंगे ना। आपने देखा होगा, आपको जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे छोटे 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 ग्रास है कि नहीं, है ना। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे बड़े बड़े जो है, बहुत बड़े बड़े भी प्लांट्स हैं, स्मॉल प्लांट्स भी हैं, कुछ की पत्तियाँ ग्रीन है ना। सम ऑफ देम हैव द ग्रीन लीव्स while other have one reddish one, है ना। some having the huge red flowers, some have the tiny blue ones, कुछ की blue flowers है ना। while some बिल्कुल, और कुछ ऐसे भी हमारे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स नहीं है ना बच्चों। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग है, वी आर सीइंग दैट अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत ही वैरायटी ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपके घर के पास, आपके स्कूल के पास, ग्राउंड में, स्कूल में आते जाते, पार्क्स में, गार्डन, एवरीवेयर विल सी। सो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस लर्न हाउ द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, और उनके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट, एंड दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। क्योंकि जब बच्चों आप प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में अच्छे से समझोगे तो देन ओनली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या वेराइटीज़ होती हैं, क्यों उनमें डिफरेंस होता है। डेफिनेटली आपने देखा होगा ना कि कुछ की लीव्स डिफरेंट होती हैं, उनका शेप अलग होता है, अलग अलग प्लांट्स की लीव्स अलग अलग होती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं बच्चों। वी आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन दिस चैप्टर, दे आर दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। सो अब देखिए, ऑब्वियसली यू ऑल हैव सीन द प्लांट, सब ने प्लांट देखा हुआ, छोटा बड़ा मोटा पतला, ठीक है, और ज़मीन पे चलने वाले, ईच एंड एवरीथिंग जो क्रीप करते हैं, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ प्लांट हैव यू सीन इट। और अब ये देखो, यहाँ पे एक फिगर है, इट शोज द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या करना है, यू हैव टू टेक अ पेंसिल, जस्ट टेक द पेंसिल, वीडियो को पॉज करिए, अभी वीडियो को पॉज करिए, टेक द पेंसिल, टेक योर बुक, टेक आउट दिस पिक्चर, और इसको आपको क्या करना है, लेबल करना है। जस्ट लेबल द व्हाट द पार्ट्स ऑफ दिस प्लांट। आई विल नॉट टेल यू, and you know this, ठीक है, you know what are the parts of the plant, I have told you, I have taught you, okay। so just pause the video, अभी वीडियो को पॉज करिए, पेंसिल उठाइए, बुक लीजिए, और इस पेज पे ये जो आपको यहाँ डायग्राम बना, जस्ट लेबल इट आउट, you understand, examine them closely, okay। so this is very important, and what you have to do, you have to color the parts, yes, you have to color this also in your book, टेक द क्रेयॉन्स एंड स्टार्ट कलरिंग इट, ठीक है बच्चों। चलो, तो आपको पता है बच्चों, अगर हम किसी भी प्लांट्स को क्लासिफाई करें, उनके स्टेम, अभी आप जब यहाँ पे आप करोगे उनको पार्ट्स को, क्या करोगे आप, लेबल करोगे, तो देखोगे एक पार्ट जो होता है इसमें स्टेम होता है, STEM, स्टेम, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। तो उसके बेसिस पे, स्टेम के बेसिस पे भी प्लांट्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है बच्चों, यस, है ना। तो the plants can be classified into different groups according to the size and type of the stem, okay। so here is this, you can see 7.1, what we are going to learn, we are going to learn about the herbs, shrubs and trees, yes, we are going to learn about the herbs, shrubs and trees, okay। so here it is, look, activity 1, okay children, activity 1, look closely at the stem and branches of, आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी है, अगर आप कहीं, मैंने अभी बताया गार्डन में, ठीक है, और कहीं छत पे, ठीक है, बाहर,
ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपको प्लांट्स वगैरह दिख रहे हो, तो आप वहाँ पे जाकर ऑब्जर्व करें, इट्स वेरी गुड, है ना। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या क्या 3 चीज़ें ऑब्जर्व करने। फर्स्ट थिंग, आपको ऐसे प्लांट्स देखने विच इज़ मच स्मॉलर देन यू। जहाँ आप खड़े हों ऐसे प्लांट्स को आप देखिए जो आपसे बहुत छोटे हों, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऐसे प्लांट देखिए विच इज़ अबाउट योर साइज, जो आपके साइज के हों, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द प्लांट विच आर मच टॉलर देन यू अंडरस्टैंड। आपको कुछ ऐसे प्लांट देखें जो आपसे बहुत बड़े हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू फील देयर स्टेम। स्टेम आपको पता होगा, आई नो यू ऑल आर नोइंग अबाउट द स्टेम, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, है ना। क्लास 1 में भी जीके की बुक में पार्ट्स ऑफ द प्लांट पढ़ाया जाता है। सो what feel their stem and try to bend them gently to see if they're tender or hard. टेंडर मीन्स क्या होता है बच्चों, टेंडर मतलब ऐसे लचीला। टेंडर मीन्स क्या होता है, लचीला, जो इजीली से बेंड हो जाए उसको टेंडर बोलते हैं। और हार्ड जो बेंड ना हो, है ना। तो क्या बच्चों करना है आपको, उनकी स्टेम को फील करो, ठीक है, और उनको क्या करना, उनको ट्राई टू बेंड, उनको बेंड करने को जेंटली आपको ऐसे बेंड करना है कि उनकी स्टेम टूटे ना, ध्यान रखना, है ना। व्हाट यू हैव टू डू, you have to feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. और आपको उनको हल्का सा बेंड करके देखना है कि क्या वो हार्ड है या टेंडर है। टेंडर मीन्स लचीला, जो इजिली बेंड हो जाए, ठीक है। हेयर इज द एक्टिविटी टेबल 7.1 ऑफ द कैटेगरीज ऑफ द प्लांट। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है ना बच्चों, आपको इसमें लिखना है। एवरीवन हैव टू राइट दिस, या आपकी बुक में फिल होना चाहिए। व्हाट हैव टू डू हियर, देखो अभी इसके आगे भी पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें भी उसमें फिल होती रहेंगी, जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे चीज़ों को उसमें फिल करते रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में अभी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं बाद में, पहले आगे चलते हैं। हाँ, तो टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो स्टेम है वो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए जब आप उसको फील कर रहे हो, ठीक है। आप और क्या करते हैं, जब आप टॉल प्लांट्स हैं ना, बड़े बड़े, उनको आप एक बार हग करिए और देखिए कि कितने मोटे हैं, हाउ थिक द स्टेम आर, है ना। एक चीज़ आपको और ऑब्जर्व करना है, वन मोर थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व दैट वी ऑल्सो नीड टू नोटिस दैट फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन द सम प्लांट्स। आपको देखना है जो आपने प्लांट्स देखे, यानी आपसे जो छोटे साइज़ के थे, जो आपके साइज़ के थे, और जो आपसे बड़े साइज़ हैं, आप इन तीनों चीज़ों में ये भी व्हाट यू हैव टू फाइंड और व्हाट यू हैव टू लुक फॉर कि उनकी स्टेम्स ब्रांचेस, सॉरी, जो स्टेम के जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही हैं। दिस यू हैव टू नोटिस इट आउट, है ना, कि क्या वो आपके ज़मीन के यानी जो बेस है उसके पास से निकल रही हैं स्टेम्स, या ऊपर जा कर के स्टेम से ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना। तो ये इन सारी चीज़ों को आपको नोटिस करना है ना। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, विल नाउ यू हैव टू ग्रुप ऑल द प्लांट्स व्हाट यू हैव ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। हियर यू हैव टू व्हाट राइट और ऑब्जर्व द थिंग्स। एक्सक्यूज मी, ओके, just wait a minute children. Yes, here it is. So here you come to know about this, okay, and here is the table, and you have to whatever you have observed, you have to write in this table. For example, see the name of a plant, you have to write it tomato. It is given at tomato. Column 1 में आपको height भरना है, ठीक है। In column 2 you have to write the stem types, that it is green in color, tender means क्या वो लचीला है, थिक मीन्स वो मोटा है, येस और नो, हार्ड मीन्स क्या वो हार्ड है या, तो ओनली यू हैव टू राइट येस और नो इन दिस, ओके। इन कॉलम नंबर 3 व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। आपको बताना है कि ब्रांचेस कहाँ से अपीयर हो रही हैं, ओके। फर्स्ट वाला कॉलम इज दैट एट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के नीचे से यानी बेस से ब्रांचेस निकल रहे हैं, और इट इज़ हायर अप ऑफ द स्टेम, या स्टेम के ऊपर से निकल रही हैं, ओके। व्हाट यू हैव टू राइट येस और नो, ठीक है, जो भी होगा यू हैव टू पुट इट आउट है, ओके। नेक्स्ट इज फोर्थ इज द कैटेगरी ऑफ द प्लांट। ये अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम आगे, तब फिर आप ये हर्ब, ट्रब, श्रब के बारे में जानेंगे कि ट्रीज क्या होते हैं, श्रब क्या होते हैं, हर्ब्स क्या होते हैं, व्हाट द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ओके। सो दिस यू हैव टू फिल, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, दिस यू हैव टू फिल एंड कंप्लीट दिस टेबल, यू गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मैनी मोर प्लांट्स, और नीचे जो 3 कॉलम्स आर ब्लैंक, आप वहाँ पे भर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड देन यू हैव टू फिल द कॉलम 4 आफ्टर यू स्टडीड द लेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन फिल दिस कॉलम नंबर 4, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। चलो जस्ट मूव इट अप। सो हियर इज दिस बच्चों, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज।
Yes, children. Based on these characters, the most plants can be classified into three categories. First one is the herbs, shrubs, and trees. Yes, children. What are they? They are the herbs, shrubs, and trees. See, the examples of all three is been given in this picture. A is the herbs, B is the shrub, and third one here, C1 is the trees. Okay, now see, let us see what are they. बच्चों, the plants with the green and tender stems, ध्यान से सुनना मेरी बात को, important part बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है. The plants with the green and tender stems are called herbs. Means ऐसे plants जिनका जो stem होता है वो green color का हो, green color का, and वो बहुत लचीला हो, easily bend हो जाए, उस type के plants को what we call the herbs. Herbs. That's called the herbs. Okay. And you know they are usually short. छोटे होते हैं बहुत. They are very generally short in height. And these are the plants with the soft and green stem. They are having very soft and green stem. And आपको पता है इनमें बहुत सारी branches नहीं होती. They may not have the many branches. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं. Some plants have the stem branching out near the base. कुछ आपको प्लांट्स ऐसे होंगे जो जमीन के पास से यानी नीचे स्टेम के निचले पार्ट से क्या होगा, वहां से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना. उनका जो स्टेम होता है बहुत हार्ड नहीं होता है. किसका? जो हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं उसका स्टेम बहुत हार्ड नहीं होता, लेकिन इनका जो मैंने बताया जिसकी ब्रांचेस नियर बेस से निकलती हैं, इनका स्टेम हार्ड होता है बट बहुत मोटा नहीं होता, बहुत थिक नहीं होता, है ना. द स्टेम of these plants which are having the stem branching out near the base, इनके जो स्टेम होता है वो हार्ड होता है बट थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता. ऐसे प्लांट्स को लोग बोलते हैं श्रब्स. व्हाट वी कॉल देम? SHRUBS, श्रब्स. ये श्रब्स वही है जो आपकी हाइट के हैं बच्चों, है ना. आप अगर ऑब्जर्व कर, अगर आपकी हाइट के कोई प्लांट है, ठीक है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रब्स बोलते हैं. इनका स्टेम हार्ड होता है बट थिक नहीं होता और यहाँ बेस से ब्रांचेस निकलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, समझ में आया बच्चों? श्रब्स, दीज आर द प्लांट्स विद द वुडी स्टेम होता है. दे हैव द ब्रांचेस नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड दे डू नॉट ग्रो एज टॉल एज ट्रीज. ये बहुत ऊंचे बहुत बड़े नहीं होते. किसकी बात कर रहा हूँ? श्रब्स की बात कर रहा हूँ बच्चों. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन से रोज, है ना. रोज देख रहे हो, रोज प्लांट्स, है ना. बहुत क्या होता है मतलब होगा, ठीक है, उसके क्या होगा, बहुत ही छोटा भी नहीं होता, ये बहुत बड़ा भी नहीं होता, वो श्रब्स में आते, ठीक है. थिक उनका बहुत ज़्यादा थिक उनका स्टेम नहीं होता, वुडी होता है जरूर, है ना. तो ये सब एग्जांपल्स में बोगनविलिया, ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं. अब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ प्लांट्स होते हैं दे आर वेरी टॉल एंड हैव द हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव द हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम. कुछ बहुत टॉल होते हैं, उनका क्या होता है जो स्टेम होता है थिक होता है, ब्राउन होता है, बहुत ही हार्ड होता है. इनके जो स्टेम्स जो होते हैं ना, उनसे जो ब्रांचेस निकलते हैं वो अपर पार्ट में निकलती है ना. मच अपर पार्ट, ठीक है, बहुत ऊपर होंगे, मच अबव द ग्राउंड. और ऐसे प्लांट्स को व्हाट वी कॉल द ट्रीज. यस, आप देख सकते हो नीम का पेड़ हो गया, जामुन, ठीक है, मैंगो, है ना, पीपल, बनान. तो दिस ऑल आर व्हाट? दे आर द ट्रीज, ह्यूज ट्रीज दे आर, है ना. और आपको पता है बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक मीन्स हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. अब क्या कर सकते हो, ये पढ़ने के बाद और जानने के बाद तब आप ऊपर आ सकते हैं अपने टेबल पे और फिर यहाँ पे कॉलम नंबर 4 में फिल कर सकते हैं कि टोमेटो इज़ अ हर्ब, मैंगो इज़ अ ट्री, लेमन इज ए श्रब. 3 आपके लिए कर दिया, बाकी आपको 3 खुद से भरने एंड यू हैव टू राइट. यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? एंड दिस इज द टुडेज होमवर्क. Yes, to complete the table 7.1, and the next homework is you have to learn that what are herbs, shrubs and trees. You are getting my points? Okay, so this is all about today's homework, ठीक है. And next मिलते हैं next lecture में, there will discuss or more about the STEM. Okay children, so तब तक के लिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर. आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से चैप्टर को समझो, एंड वट एवर द होमवर्क आई हैव गिवन, गो थ्रू इट. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर चिल्ड्रन.
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।